السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ کانورسیشن کریں گے. آج اس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے اس میں ویلنس ٹاکس کے حوالے سے، جو ہمارا ایک اسٹریم ہے CPDI کی، اس کے اوپر وہ یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس کا عنوان ہے فیڈنگ پروفٹس اینڈ ہاؤ اوور فوڈ انوائرمنٹس آر فیلنگ چلڈرن. یہ گلوبل نیوٹریشن رپورٹ ہے جو 2025 کے لیے ریلیز کی گئی ہے. اس میں بہت اہم باتیں جو ہیں وہ یونیسیف نے کی ہیں، ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ کی ہیں، خاص طور پہ جو لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہیں جس میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے، اس کے لیے وہ رپورٹ بہت اہم ہے. اس کا جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اوبیسٹی ہے بچوں کے اندر اینڈ ایڈولسنٹس کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے. اوور ویٹ، پہلے ہم صرف اوور ویٹ تھے لیکن اب اوبیسٹی کی طرف بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. اب اوبیسٹی ایک ایسی کنڈیشن ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس کے ساتھ پھر دوسری بیماریاں جڑی ہیں. اور اگر یہ آپ کو بچپن میں یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے آپ کے جسم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بڑے ایڈلٹس ہیں وہ ہم پیشنٹس کریٹ کر رہے ہوں گے. اب پیشنٹس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اوپر پریشر آئے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری معیشت کی ترقی کی رفتار سست ہو سکتی ہے، کہ بجائے کہ تندرست و توانا قوم ہو، وہ ایک بیماریوں میں مبتلا جو ہے وہ قوم ہوگی. تو ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اینڈ وی آر فارچونیٹ دیٹ وی ہیو ڈاکٹر نورین ارشد ود اس. شی ورکس ود یونیسیف، اور ایک لمبا طویل عرصہ ہے جو انہوں نے نیوٹریشن کو دیکھا ہے، نیوٹریشن پہ کام کیا ہے، اور ہمارے ساتھ وہ معلومات بھی شیئر کریں گی. اس رپورٹ پہ ہم بات کریں گے تاکہ ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں، اس بحث کو آگے لے کے چلیں، اور ہم پاکستان میں وہ پالیسیز لے کے آ سکیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فوڈ کا سسٹم جو ہے بہتر ہو، اور بچے ہمارے تندرست و توانا ہوں، صحت مند ہوں، بجائے کہ وہ غلط خوراک کھا کر ہونے کی طرف چلے جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائیں اور اس پہ ہم بات چیت کریں گے. آپ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو یہ ذرا بتائیے کہ یہ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ کی جو ہیلتھ ہے یہ کیا ہے. ایک تو یہ عمر کیا ہے جس کو ایڈولسنٹس کہتے ہیں، اور اس کا ہماری خوراک کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کے پھر اس خوراک کے ہمارے بچوں کی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پھر ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں. جی شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بلایا اور اس امپورٹنٹ ڈسکشن کے لیے. اور میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. ہم لوگ زیادہ تر ماؤں کی اور چھوٹے بچوں کی، 5 سال کم بچوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ عمر ہے جس میں بچے شاید اپنی ضروریات کو خود بھی پہچانتے ہیں، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کیا چیز بہتر ہے. تو اگر ایڈولسنٹ کی ہم بات کریں تو ایڈولسنٹ ایک ایج گروپ ہوتا ہے جو آپ کے 5 سال کے بعد ہوتا ہے، جس میں ہم مڈل ایج کہتے ہیں، 5 سے 9 سال، اور پھر 10 سے 19 سال ہماری ایڈولسنٹ ہوتی ہے. اگر بہت ہی سمپل ورڈز میں آپ کو ایڈولسنٹ کا مطلب بتاؤں تو یہ بلوغت کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جب بچے بلوغت میں ان کی گروتھ شروع ہوتی ہے، اور فزیکل، مینٹل، سوشل، سائیکو سوشل، ایموشنل، یہ ان کی گروتھ شروع ہوتی ہے. تو اس ٹائم پیریڈ کو ہم ایڈولسنٹ کہتے ہیں. اور اس میں بچوں کی ڈیفینیٹلی ڈیمانڈس بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس بھی چینج ہوتی ہیں. اور یہ وہ ایج ہے جس میں بچے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، مینٹلی چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر ایموشنلی ان کے جذبات بھی بنتے ہیں، پھر فزیکل گروتھ جس کو اسٹریٹ لائن گروتھ ہم کہتے ہیں، ان کی لینئر گروتھ ہوتی ہے جس میں ان کی ہائٹ اور ویٹ انکریز کرتی ہے. لڑکیاں زیادہ تر ان کے اندر جو انکریز ہوتی ہے ہائٹ، وہ تقریباً 6 سے 7-8 انچز کی ہوتی ہے، اور ویٹ ان کا تقریباً، اگر ہم دیکھیں ویٹ ان کا تقریباً 35 اس میں kg ہوتا ہے. یہ اتنا پورا جو ان کا 10 سال سے لے کے 19 سال تک کا پیریڈ ہے، اس میں یہ اس طرح ان کی ویٹ اور ہائٹ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ شروع ہوتی ہے 10 سے 11 سال کی عمر میں بلوغت، اور پھر اس کے بعد ان کا بھی ہائٹ جو ہے 8 سے 9 انچز، اور پھر ویٹ بھی 45. اب لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا جب ویٹ بڑھتا ہے تو اس میں باڈی میس، لین میس وہ کم ہوتا ہے، اور اس میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے. لیکن لڑکوں کا جب ویٹ بڑھتا ہے تو اس میں مسل زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مسکولر باڈی زیادہ، تو اس میں آپ کی مسکولر جو ہے نا آپ کی، وہ زیادہ گروتھ ہوتی ہے. جب اس اسٹیج سے نکلتے ہیں تو پھر اب ان کی چوائسیز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال ہے کہ جب اس بچے جب اس عمر میں ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا کھانا چاہیے، کیا ان کی چوائس ہے. ان کا پیئر پریشر ہوتا ہے، جس اسکول میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جن دوستوں میں، تو آج کل پھر وہ اس چیز کو انفلوئنس ہوتے ہیں، اور پھر
आज छोटे बच्चे भी अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन जो ये उम्र के बच्चे होते हैं, दे नो व्हाट टू ईट, व्हाट राइट फूड दे वांट टू ईट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को सही नॉलेज दें कि उनको क्या खाना चाहिए। तो हमने अक्सर ये देखा है कि बच्चे रॉन्ग चॉइसेस बनाना शुरू हो जाते हैं, और मेरे ख्याल में अब अगर आपने जिस स्टडी की बात की उसमें भी ये चीज़ आती है कि बच्चे जो हैं वो जो उनकी इर्द गिर्द की फूड एनवायरनमेंट है उस पर, जो फूड एनवायरनमेंट घर पे मिल रही है उसको, एक फूड एनवायरनमेंट उसको स्कूल में मिल रही है, और एक फूड एनवायरनमेंट उसको अपने एक्सटर्नल उसमें मिल रही है, गली हो गई, मोहल्ला हो गया, वेंडर्स हो गए, जिन सब के उसकी अप्रोच है। क्योंकि ये बच्चा वहाँ जा भी सकता है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, और उसके पास पैसे भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे राइट चॉइस करें और राइट फूड खाएं। राइट फूड का मतलब ये है कि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। इस उम्र में बच्चों की खुराक अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलने। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो सिंपल आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको आप बिल्कुल छोटी मिकदार में होते हैं, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल, जो बॉडी में आपको पूरी साल में या पूरी ज़िंदगी में हार्डली एक छोटे से एक आधे चम्मच से भी छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो क्वांटिटी होती है, लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, जिंक हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए मस्ट है, और इनकी डेफिशिएंसी से आपको डिजीज़ होना चाहिए शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में अगर एडोलेसेंट का देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में अराउंड 1.2 बिलियन एडोलेसेंट्स हैं, जिसमें 80% के करीब जो एडोलेसेंट हैं वो इधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हैं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा हमारा वो बर्डन है कि यहाँ सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट इधर। और फिर मेल न्यूट्रिशन, जब हम मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये बर्डन सबसे ज़्यादा इस इलाके में पाया जाता है, जिसमें हमारा एशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मेल न्यूट्रिशन भी हम अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ट्रिपल बर्डन ऑफ न्यूट्रिशन। उसका रीज़न ये है, ट्रिपल बर्डन क्यों कहते हैं, कि पहले तो हम फाइट कर रहे थे अंडर न्यूट्रिशन से, और आपका बच्चा थिन था, कमज़ोर था उससे, फिर हम कह रहे थे ओवरवेट जो है ना, ओबेसिटी एक राइजिंग मेल न्यूट्रिशन है, जिसमें पहले 2011 का जो सर्वे हुआ था पाकिस्तान में, उसमें जो फिगर्स थे उसके बाद विदिन 10 ईयर्स जो फिगर्स आई वो डबल हो गई। यानी कि हम 5% पे पहले खड़े थे एडोलेसेंट ओवरवेट एंड, अब हम 11% पे खड़े। तो देखिए एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और इसी तरह आपका ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इन बच्चों में, स्पेशली लड़कियों में, जो हमने अनीमिया देखा तो वो 59% अनीमिक थी लड़कियां पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो यानी कि हर दूसरी लड़की हमारी जो 10 से 19 साल की है, हर दूसरी लड़की वो अनीमिक है। तो ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग हैं और बहुत ग्रेव हैं। बट अगर हमने कुछ नहीं किया इस टाइम पे, तो इसका मतलब ये जो हमारी बच्चे हैं इनका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में आएगा, स्कूल्स में आएगा, स्कूल से ड्रॉप आउट्स होंगे, ये आगे यही मदर्स जो हैं इनका जो यही बच्चियां आगे चल के माएँ बनेंगी, तो हमारी हेल्थी माएँ नहीं होंगी, फिर आगे जो बच्चे होंगे वो हेल्थी नहीं होंगे। तो एक पूरा विशियस साइकिल है। तो हमें इसी टाइम पे अपने बच्चों की सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, उनको उन सारी चीज़ों से दूर रखना है जो उनकी सेहत को ख़राब करती हैं। तो ये ये रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट हमारी यूनिसेफ की ग्लोबल रिपोर्ट आई है, ये उन्हीं चीज़ों को ही तरफ हाईलाइट कर रही है जिसको कहते हैं फूड एनवायरनमेंट। स्कूल फूड एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल फूड एनवायरनमेंट, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए, आपको इन सारे जो हैं डोनर्स को क्या करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट के अंदर पूरा एक फ्रेमवर्क भी दिया है कि किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें हम उस रिपोर्ट से भी सीख रहे हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में होता है तो उसकी स्कूल फूड एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। तो स्कूल फूड एनवायरनमेंट एक आम आदमी को आपने समझाना है तो क्या है। स्कूल फूड एनवायरनमेंट में ये होता है कि उसका जो खुराक है क्या वो हेल्दी है कि नहीं है, कि वो किस तरह की खुराक ले रहा है। दूसरी जो एक चीज़ है जो सेकंड जिसको हम कहते हैं वो उसका कि वो स्कूल के अंदर है तो क्या वहाँ मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, जो मार्केटिंग का मतलब अनहेल्दी फूड्स हैं। आपके स्कूल के बाहर आपने देखा होगा, स्कूल के अंदर जो कैंटीन है या स्कूल के बाहर जो वेंडर्स हैं
وہ اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہیں جو ہائی شوگر کانٹینٹ ہیں, جس میں ہائی سالٹ کانٹینٹ ہے, جس میں ٹرانس فیٹی ایسڈ یا چکنائی بہت زیادہ ہے, اور ہماری کینٹین میں بچے یہ کھاتے ہیں بڑے آرام سے. اور یہی ایک ریزن ہوتا ہے جو آپ یہ اس طرح کی خوراک لیتے ہیں. ایک تو یہ نان نیوٹریشس ہے, اس کے اندر نیوٹرینٹ ویلیوز بالکل زیرو ہوتی ہیں, اور کاربس بہت ہائی ہوتی ہیں. پھر آپ کے جو شوگر سویٹن بیوریجز ہیں جن میں آپ کے سافٹ ڈرنکس ہو جاتے ہیں, آپ کے فروٹ جوسز ہو جاتے ہیں جس میں ہائی کیلوری ہائی شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے, اس سے ان کا ویٹ بڑھتا ہے, لیکن مائکرو نیوٹرینٹ ویلیوز ان کی بالکل نیگلیجبل ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہماری ایک پالیسی ہے نا کہ ہم اسکول کے ارد گرد اس طرح کے پالیسیز بنائیں, وہ بنائیں, لاز بنائیں جس سے یہ بچوں پہ امپیکٹ نہ آئے, اور یہ بچے بڑے آرام سے, مطلب اگر اسکول کے اندر ان کو اگر شوگر سویٹن بیوریجز مل رہی ہیں, سافٹ ڈرنکس مل رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کا ویٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی پالیسیز ہوں, جو لا بنے, پالیسیز بنے, پھر اس کی انیکٹمنٹ ہو اور پھر انفورسمنٹ ہو. کوئی ایک ادارہ ہونا چاہیے, جو پاکستان کے اندر ہیں ادارے جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ اسکول کے اندر اس قسم کی کوئی بھی چیز نہ تو بچوں کا ایکسیس ہوگا اور نہ باہر ہوگا, اور اسی طرح ہم بچوں کو روک سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اسکول کے اندر ایک اور انٹرونشنز ہم کہتے ہیں, وہ ہے ملٹی مائکرو نیوٹرین سپلیمنٹیشن اور ڈی وارمنگ کی, کیونکہ یہ بچوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ بھی ہم ایک اسکول پلیٹ فارم کے تھرو جا سکتے ہیں. تیسرا, ہم ڈیمانڈ کریشن, ہم صرف یہ کام نہیں کریں کہ سپلائی سائڈ سے سب چیزیں پرووائڈ کریں, لیکن ہمیں یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں میں جب اویئرنیس کریٹ کریں تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے, یعنی کہ ان کو یہ پتا ہو. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو خوراک ہم نے کھانی ہے وہ ہم نہیں کھا رہے ہیں. بے شک وہ اویلیبل بھی ہے, کہیں پہ تو شارٹیج ہو سکتی ہے لیکن کہیں پہ اویلیبل ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں پروٹین رچ ڈائٹ لینی ہے, جو بچے خاص طور پہ جب ایک گروتھ کا وقت ہے, ایک گروتھ سپرٹ ان کے پاس, ایک ونڈو ہے جس میں بچوں نے گرو کرنا ہے, تو اس میں اگر ان کے پاس ہیلدی فوڈ, یعنی کہ جس میں میکرو اینڈ مائکرو نیوٹرینٹس شامل ہوں, اگر وہ نہیں ہے اور اس کی جگہ ان کو خوراک کے نام پہ کچھ ایسی چیزیں دی جا رہی ہیں جو ہارمفل ہیں, تو اس مسئلے کو بڑھاتے جائیں گے. سو اب آپ کا جو ادارہ ہے, یونیسیف ہے اور جو دوسرے اقوام متحدہ کے ادارے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان ہیلدی کو روکیں اور ہیلدی کی اویلیبلٹی, اس کی ایکسیس بڑھائیں. بالکل. تو یہ فوڈ انوائرمنٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا آپ کی بات, کہ جو ہمارے اسکولوں میں اس وقت جو خوراک کے نام پر جو انہیلدی فوڈ ہے, جس کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہے, جس میں ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ کم ہیں, تو اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں اور دوسری خوراک کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ کچھ پالیسیز کا تذکرہ اس رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے کہ اپنے الٹرا پروسیس فوڈز کو شاید تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ مہنگا بھی کریں, اس کو اتنا سستا نہ رکھیں, اس کی اویلیبلٹی کو بھی روکیں, اس کی افورڈیبلٹی کو بھی روکیں, اور تاکہ اس کی کنزمپشن کم ہو. پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از الٹرا پروسیس فوڈس. الٹرا پروسیس فوڈ ہم اس فوڈ کو کہتے ہیں جو پروسیس ہوتا ہے فیکٹریز میں, جو را مٹیریل سے نہیں بنتا ہے بلکہ اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں, اس میں پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں, جسٹ ٹو انہینس کرنے کے لیے, اس کا ٹیسٹ کو, ٹیکسچر کو, اس کی لک کو بہتر کرنے کو ڈالنے کے بعد اس کی شیلف لائف بھی بڑھائی جاتی ہے. کوئی بھی فوڈ آپ اپنے گھر میں بھی تازہ فوڈ رکھیں 2-3 دن کے بعد وہ بالکل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر بات اس میں بیکٹیریا اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن جب آپ کا الٹرا پروسیس فوڈ کو پریزرویٹیوز بھی ڈالے جاتے ہیں, جو کو ہم سب کو بھی پتا ہے کہ پریزرویٹیوز جو ہیں وہ کینسر کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ان پریزرویٹیوز کو ڈالنے کے بعد وہ فوڈ ایسا بناتے ہیں جو دیکھنے والے کو, اسپیشلی ہمارے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس خوبصورت سی اور اس کی جو پیکنگ ہے اس فوڈ کی, اس کو اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹیسٹی ہے, اور پھر اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے, مارکیٹنگ کی جاتی ہے کہ اس سے آپ کو طاقت ملے گی, اس سے آپ ایک مطلب ایک جو ہیلدی اور ایک وہ ہوتا ہے نا میچو مین کی ایک پکچر آپ کے دماغ میں آتی ہے, اچھا یہ ڈرنک پیوں گا تو یہ میچو مین والی. تو یہ اس کے ساتھ اس کو پوری ایک وہ ایک مارکیٹنگ کا ایک پورا پورٹ فولیو ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے انٹائز کرنا ہے بچوں کے دماغوں کے ساتھ. اور پھر ہمارے جو اسکولس ہیں ان کے اندر کینٹینز ہوتی ہیں, وہاں پہ جو وینڈرز ہوتے ہیں جو کینٹینز کے اندر ان کو وہ یہ ساری پروڈکٹ سیل کر. اور بات یہ بھی ہے کہ ایک چیز جو نوٹ کی گئی ہے کہ جتنی ہیلدی فوڈز ہوتے ہیں دے آر کاسٹلی, اور جتنے انہیلدی فوڈز ہوں گے جیسے شوگر سویٹن بیوریجز, سافٹ ڈرنک, یہ سارے
चीप होते हैं और अनएक्सपेंसिव, मतलब आप उनको सस्ते होते हैं, रीचेबल होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। यानी कि वो बच्चा अगर वो पैसे लेके जाता है, हो सकता है उसको उसके मुकाबले में कोई हेल्दी चीज़ अगर लेनी पड़े तो उसके पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन ये चीज़ें सस्ती रखी जाती हैं ताकि बच्चों की रीच के मुताबिक हो। तो इसी ये और मुसलसल उनके सामने लेके आता है। मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, वीडियोस, हमारे जो व्यूअर्स हैं इस चार्ट को देखेंगे भी जब हम ये बात कर रहे हैं कि तकरीबन 90% के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने ये इसके इश्तिहार देखे होते हैं, हमने ये वाली खुराक खानी है, और उनको बाय नेम्स वो खुराक को खरीदते हैं। वो उस मार्केट में जो उस खुराक की पब्लिसिटी हो रही होती है, वो उसको उस नाम से पुकारा जाता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये उसको इंटाइस किया जाता है कि इसके कितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है। तो ये एक मार्केटिंग का पूरा होता है। तो हमारा जो इस मेजर रोल है वो ये है कि हम एक पॉलिसी डायलॉग, हम ऑलरेडी यूनिसेफ इस पे पॉलिसी डायलॉग किए कि इस किस्म की कोई भी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए अनहेल्दी फूड इन एंड अराउंड स्कूल। बिल्कुल इस तरह के जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, जो इवन मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, मिडिल एज के हैं, जो 5 साल से लेकर 9-10 साल तक, और फिर जो 10 साल, उनका स्कूल में ये एक्सेस होता है कि स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल में माएँ भी उसको बच्चों को दे देती हैं कि ठीक है पैसे लें वहाँ पे। लेकिन स्कूल की इंतज़ामिया को भी ये चाहिए कि इस किस्म की सेल बिल्कुल बंद करें और उसकी जगह आप बच्चों के लिए रिप्लेसमेंट्स लेके आएँ। सारी बातें हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चे कुछ ना खाएं, उनकी एक हेल्दी रिप्लेसमेंट्स लेके आएँ, और ये मार्केटिंग बंद होनी चाहिए। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले फॉरमोस्ट इनेक्टमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सारे प्रोविंसेस के अंदर नोटिफिकेशंस हैं कि हम सेल नहीं कर सकते अनहेल्दी फूड इन एंड अराउंड स्कूल, लेकिन मसला ये है कि वो जो इनेक्टमेंट है वो बड़ी सिंपल है। यानी कि आपने फूड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, और उसमें आपने ये कर दिया कि जो रेड फूड्स हैं वो बच्चे कम बिल्कुल ना लें, और फिर जो ऑरेंज है वो ओकेजनली लें, और ग्रीन जो ले सकते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट हमारे हर प्रोविंस के अंदर एक वो है नोटिफिकेशन, लेकिन हमें एक ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम इंडस्ट्री को टारगेट कर सकें कि इंडस्ट्री सटल वे में किस तरह वो बच्चों तक पहुंच रही है, स्कूलों तक पहुंच रही है, और उन जगहों तक पहुंच रही है जो बच्चों की लिंक है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो स्कूल की इंतज़ामिया है उनकी भी ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है, उनकी उनका एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है कि स्कूल में बच्चे जब आते हैं, इट्स नॉट ओनली सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी और सेफ्टी, बट सेफ्टी और सिक्योरिटी फ्रॉम दीज मार्केटिंग टैक्टिक्स। उन बच्चों को इन जितने भी ये आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इनको इन्वॉल्व करते हैं, इन चीज़ों से भी बात रखें। बल्कि मैं यूनिसेफ के डॉक्टर साहब एक और रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये तज़किरा था कि जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, अगर उनकी अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं हैं तो इसके इम्कानात है कि उनके बच्चों की ईटिंग हैबिट्स भी गलत हो जाएंगी। तो जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि असातिज़ा की और स्कूल के लोगों की ट्रेनिंग होना, और शायद पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होना कि हमने हेल्दी फूड ही बच्चों को देनी है ताकि वो एक बेहतर शहरी बन सके, बेहतर इंसान बन सके, बजाय कि हम उनको जो आसानी से अवेलेबल है वो उनको मुयस्सर करने की कोशिश करें। तो क्या यूनिसेफ पाकिस्तान में इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स की तरफ बिल्कुल हम दोनों एंड्स पे काम कर रहे हैं। हम एक सप्लाई साइड पे भी काम कर रहे हैं और डिमांड साइड पे भी काम कर रहे हैं। सप्लाई साइड पे तो हम एडवोकेसी कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट काउंटर पार्ट्स, जिसमें आपकी मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट हो गए, फूड अथॉरिटीज़ हो गई, PSQC हो गया, आपके पार्टनर, वहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं कि हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। यूनिफाइड किस्म की लेजिस्लेशन चाहिए कि एक हो लेजिस्लेशन जो सारे प्रोविंस में इक्वल हो, मतलब उसमें लूप होल, क्योंकि हमने एक एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पर भी इंडस्ट्री को मौका मिलता है वो वहाँ से जाके आप पे उस तरफ से आता है जहाँ पे लूप होल्स होते हैं। तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत है जो कि प्रोविंसेस इसको अडॉप्ट करें। फिर इसके बाद आ जाती है कि आपके पास कौन से अदारे हैं जिनका ये रोल है इसको इन्फोर्स कराने, क्या वो कैपेसिटेटेड हैं या उनके लोगों को ये पता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की। फिर आ जाता है एक रोल आपका जो स्कूल के अंदर हो रहा है। स्कूल सोसाइटी जितने स्कूल्स हैं, क्या उनको पता है, क्या वो जो वेंडर्स हायर करते हैं क्या उनको वो कोई
स्टैंडर्ड्स देते हैं कि स्कूल में इस तरह का फूड आएगा, इस तरह का नहीं आएगा, तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाने की हमें ज़रूरत है। फिर हमारे पास एक प्रोग्राम चल रहे हैं, स्कूल मील प्रोग्राम, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, हॉट मील प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें, लेकिन क्या हमारे वो हॉट मील और स्कूल मील प्रोग्राम है, क्या वो अलाइंड है उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ? हमें उस चीज़ को भी देखना है, क्योंकि हम ये ना हो कि हम कोई अच्छाई करते करते कोई ऐसे एलिमेंट को प्रमोट कर रहे हैं जो उन बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। तो हमें इन चीज़ों पे भी काम करने की जरूरत। तो ये तो हमारे वो पॉलिसीज़ हो गए, वो स्टैंडर्ड्स हो गए, ये जो बनने की। फिर इसके बाद डिमांड क्रिएशन में हमारा रोल आ जाता है, एनजीओज़ का आ जाता है, सिविल सोसाइटी का आ जाता है, जो मीडिया का आ जाता है। मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। आपके पास एक बहुत अथॉरिटी है, पैमरा की अथॉरिटी है, जो मेक श्योर करती है कि जिस एडवर्टाइजमेंट ना हो इन किस्म की। तो ये उनका रोल है कि वो मेक श्योर करे कि वॉलंटरी अडॉप्ट करें इन चीज़ों को, कि कोई एडवर्टाइजमेंट ना हो जिससे बच्चों को इंटाइज किया जाए कि एक गलत मैसेज, आप एक गलत न्यूट्रिएंट वैल्यू का मैसेज दे रहे हैं, जो वो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं जिसका आपको भी नहीं पता। आप कह दें कि जी ये तो बड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री की बड़ी एक वो होती है, जो बज़ वर्ड्स होते हैं ना, अगर वो देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ के ये बज़ वर्ड्स हैं तो वो उनको अपनी मार्केटिंग में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि वो अगर आपको न्यूट्रिशियस कह रहे हैं तो क्या वो वाकई उसके मिसलीड ना करें। तो हमें मिसलीड करने वाले कंपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई। फिर पेरेंट्स की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मैसेजेस, आजकल सोशल मीडिया एक वो मीडियम है जो कि हर बच्चा, हर नौजवान, बल्कि मेरे ख्याल में वर्बल कम्युनिकेशन चाहे वो लोग कम करते हैं, सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन से वो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल वो जितने चैनल्स हैं जिससे हम बच्चों को रीच कर सकते हैं, चाहे वो आपका मैस मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे दूसरे मीडियम्स हैं, आप उन चैनल से एक ही मैसेज पहुंचाएं कि ये उनके लिए है। तो फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी शेमिंग। हम उस पर बात नहीं करते, जबकि हमें पता है हमारे एडोलेसेंट बॉडी शेमिंग पे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और वो इस चीज़ को बड़ा वो करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, कि ओवरवेट, ओबेसिटी हमारे एक स्टिग्मा बन जाता है हमारी बच्चियों के लिए। तो हमें इस चीज़ को, और ये वही खुराक है, वही डाइट्स हैं जिनको लेने से आपका ओवरवेट और ओबेसिटी बढ़ता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक कॉन्फिडेंट ना हो या वो इस चीज़ से पीछे रह जाएं। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल, और अवेयरनेस क्रिएशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। उस पर तो हमें हर प्लेटफॉर्म यूज़ करके ये मैसेज देना चाहिए कि हेल्दी फूड क्या होता है उसकी। एक इससे मिलता जुलता मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब हम ये ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एक उसमें कंपोनेंट यूथ लेड एडवोकेसी का भी बनता है, या यूथ लेड चेंज का बनता है। एक एस्पेक्ट जिस पे हम शायद बहुत कम तवज्जो है पाकिस्तान में, वो है कि नौजवान, ये जो एडोलेसेंट्स की जो एज है, इसमें बच्चों को किचन में और सेल्फ कुकिंग की तरफ राग़िब करना, कि वो अपना मील खुद प्रिपेयर कर सकें। बिल्कुल। वरना तो जिस तरीके से जितनी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, और अक्सर शहरों में तो ख़ास तौर पे माँ बाप दोनों जो हैं वो बिजी होते हैं, और बहुत कम वक्त होता है कि जिसमें किचन जो है वो, और फुल मतलब फ्रॉम स्क्रैच आप एक फूड प्रिपेयर करें। तो बच्चों को शायद ये वाला एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर बेस्ट फ्रेंड इज देयर किचन, नॉट द टक शॉप, नॉट द प्रोडक्ट्स दे which are readily available in the market, बल्कि वो कॉर्न को घर में ला के उसको बॉईल कर सकें, वेजिटेबल्स को बॉईल या उसको फ्राई कर सकें। तो क्या इस तरफ कोई तवज्जो है या इस तरफ प्लान है कि आप सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? हमारे यूनिसेफ के अंदर हमारा एक पूरा सेक्शन है, एडोलेसेंट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम मुख्तलिफ एडोलेसेंट एज ग्रुप, मिडिल एज ग्रुप जो है हमारा 10 से 12-13 साल के बच्चे, फिर 12-13 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे, और 15 साल से लेके, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि इन डिफरेंट ग्रुप्स की, क्योंकि इन ग्रुप्स में, क्योंकि बच्चों में नॉलेज एकदम बढ़ता है। 10 साल का बच्चा देखेंगे तो उसका एक डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज होगा, 14 साल के बच्चे का डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज होगा, 18-19 साल के बच्चे का डिफरेंट है। तो हमें जो भी प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमने उसी उनके नॉलेज को, हमें हर एक को एक चीज़ से नहीं मेजर करना, हर एक के लेवल्स, और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इक्विटी का जो है ना वो रहे। तो इसमें अगर आप तो इस यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम में हमने अभी रिसेंटली बेनज़ीर नशो नुमा प्रोग्राम के साथ मिलके एक पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च बूट कैंप किया था,
बूट कैंप का मकसद ये था कि जितने हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं जो जिनका एक्सेस शायद एजुकेशन से है, कुछ स्कूल गोइंग है, कुछ नहीं स्कूल गोइंग कम्युनिटी में, लेकिन उनको बाहर की दुनिया का भी पता चले, उनको ये पता चले कि इस एज में क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है। क्योंकि हमने ये देखा कि जब आप कम्युनिटी के साथ इंगेज होते हैं तो आपको उन्हीं के लोगों को इंगेज करना होता है। हमारे यहाँ कम्युनिटी में इंगेजमेंट में मदर टू मदर और फादर टू फादर सपोर्ट ग्रुप है, लेकिन पीयर सपोर्ट ग्रुप्स कोई नहीं थे। फिर हमने इस इंगेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू पीयर सपोर्ट ग्रुप्स बनाए। फिर हमने एडोलेसेंट चैंपियंस बनाए। एडोलेसेंट चैंपियंस का क्या रोल है? उनका ये रोल है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल हैं या इन स्कूल हैं, उनको इंगेज करें। वो जो की मैसेजेस हैं, 5-6 पर्टिनेंट की मैसेजेस, वो उन बच्चियों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनका एक्सेस शायद मीडिया से नहीं है या स्कूल से नहीं है, ताकि वो, तो ये जो आपके एक तो आप वॉलेंट्री इंगेजमेंट है यूथ को, और यूथ सेल्फ दे टेक पार्ट इन दिस पॉलिसी डिसीजन। हमने उन यूथ को भी एंगेज किया जो कॉलेजेस में थे और स्कूल में थे। उनको हमने इस तरह एंगेज किया कि हमने उनको न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च टॉपिक्स दिए। उन्होंने अभी, उनका ये कंप्लीट होने वाली है एक्टिविटी, उन्होंने 6 से 8 महीने के अंदर अपना पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट करना था अराउंड एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, और फिर उसके ऊपर उन्होंने वो अपने आर्टिकल्स लिखने थे, और वो आर्टिकल्स कहीं ना कहीं हम उनको जो बेस्ट 3 आर्टिकल्स थे उसकी उनको कोई इंसेंटिवाइज भी कर देंगे, और फिर वो आर्टिकल्स हमारे कहीं ना कहीं पब्लिश होंगे। तो ये वो यूथ लेड एक्टिविटीज़ हैं जो हम इनकरेज करें, और फिर हम कर भी थ्रू सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के थ्रू भी रहे। हम उनको इंगेज कर रहे हैं जहां हम कम्युनिटीज़ में नहीं रीच कर पास जा सकते, जैसे नॉन लेडी हेल्थ वर्कर हमारा एरिया है जहाँ पे हमने एक पहुँचा, तो ये यूथ हमारे चेंज एजेंट्स हैं जिनको हम इंगेज कर रहे हैं। एक इसमें ये भी है कि उनको वॉलेंट्री हम थोड़ी बहुत स्टाइपेंड दे के उस घर की एम्पावर करें इकोनॉमिकली, और दूसरा ये कि वो हमारे लिए चेंज एजेंट साबित होंगे। और फिर जो मैसेज एक यूथ से दूसरी यूथ को जाएगा उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, जो मेरे से जाएगा वो एक डिफरेंट होगा। तो ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम यूथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत इनकरेजिंग है। यूनिसेफ की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में हमेशा से बड़ी इंस्पिरेशनल रही है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है यूनाइटेड नेशंस के लोगों का यहाँ होना, आप जैसे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे होना, कि हम जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम पाकिस्तान में लेके आए। और हमने इस पे ऊपर किया भी, हमने आपको देखा भी मुख्तलिफ जो गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स हैं फूड गवर्नेंस के, उसमें आपका एक रोल रहा है। यूनिसेफ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, खासतौर पे ITF रिडक्शन के अंदर आपका एक बड़ा सेंट्रल रोल रहा, कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस जो पॉलिसीज हैं उसका हिस्सा है। 2% से कम होना चाहिए तमाम फूड के अंदर ITF है, सो दैट जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, ये ओबेसिटी जो है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, वो कंट्रोल में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा और बड़ा इंस्पिरेशनल है। हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं सारी गुफ्तगू के दौरान, कि किस तरीके से यूनिसेफ ने पाकिस्तान में एक रोल प्ले किया और पाकिस्तान के पॉलिसी एनवायरनमेंट को बेहतर करने की तरफ लेके गए हैं, जिससे फिर अल्टीमेटली हमारा फूड एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आपने जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो उसमें आपने सर्वेलेंस के मैकेनिज्म्स की बात की, तो डॉक्टर सानिया निश्तर जो इस वक्त गावी में है और वो वैक्सीन के इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को, उन्होंने अपनी किताब में एक तज़किरा किया है कि अगर आप डिजीजेस को फॉलो करेंगे तो शायद आप कभी ना पकड़ सकें, लेकिन आप उन इंग्रेडिएंट्स को या न्यूट्रिएंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न को आप टारगेट करें कि वो खुराक के अंदर शामिल ना हो। तो ये सर्वेलेंस के मैकेनिज्म्स आपके ख्याल में पाकिस्तान कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक तो अपने स्टैंडर्ड्स की बात की, तो क्या इसमें कोई सिविल सोसाइटी का भी कोई रोल बनता है कि सर्वेलेंस को इम्प्रूव कर सके? जी बिल्कुल बनता है। एक इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें पहले ये पता चले कि हमारे पास हम किस तरह डाटा कंपाइल कर रहे हैं। डाटा जो है हमारे पास मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने एडोलेसेंट न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स DHIS2 में डाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं सिर्फ लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ कि वो हेल्थ सिस्टम होता है जो आपकी कम्युनिटी के अंदर काम हो रहा होता है। देखिए हम मुख्तलिफ इंटरवेंशंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कितने औरतों को रीच किया इफेक्टिवली? नॉट ये कि हमने रीच किया,
हाउ इफेक्टिवली हमने उनको रीच किया और हमारा क्या क्या डाटा आ रहा है, हम उसी डाटा के बेस पे, या प्रेवलेंस डाटा कितना है, इंसिडेंस, उसी डाटा की बेस पे हम ये डिसीजंस लेते हैं कि ये इंटरवेंशन कंटिन्यू करें या इसको फर्दर स्ट्रेंथन करें। तो ये हमने इसमें जो बच्चियां हैं, आपको पता है कि इन बच्चियों के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। हमने जब ये अज्यूम कर लिया कि हमने बच्चों को रीच करना है, तो फिर हमने उनसे एक इफेक्टिव इंटरवेंशंस के थ्रू रीच करना है। तो 2 इंटरवेंशंस हैं जिसको मैं हाईलाइट करूंगी इसमें। एक इंटरवेंशन है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की, जिसको हम स्कूल प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं और थ्रू उसके भी दे रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू भी। और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक ऐसा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, कि उसको कंडीशनल कर दिया कि हर बच्ची जो एक घराने की है, जो कि कफालत हाउस होल्ड का घराना है, उसके अंदर अगर एडोलेसेंट बच्ची है तो वो एलिजिबल है कंडीशनल ट्रांसफ़र की अलॉन्ग विद द वीकली आयरन फॉलिक एसिड। यानी वीकली आयरन फॉलिक एसिड ये है कि अगर एक बच्ची जिसको अनीमिया से रोकना है या उसकी एनीमिया प्रिवेंट करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बच्चियां जो हैं एडोलेसेंट हैं, 18% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स दे गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। तो अगर वो शादी हो जाती है तो वो बच्चे आगे होते हैं, तो वो एक हम उस इंटरजेनरेशनल साइकिल जो है ना उसको भी ब्रेक करना चाहते हैं। तो हम उन बच्चियों को एक तो आयरन फॉलिक एसिड के साथ रीच कर रहे हैं, दूसरा ये कि उनकी अवेयरनेस बेहतर कर रहे हैं, उनको कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू इंगेज कर रहे हैं, और तीसरा ये कि उनको डिवॉर्मिंग का भी, हमारा पाकिस्तान डिवॉर्मिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम है, उसके साथ भी उसको लिंक किया गया, जिसमें 45 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पता है कि मिडिल एज स्कूल एज और मिडिल एज बच्चों को थोड़ा सा डिवॉर्मिंग के बारे में बताइएगा कि डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है ये बच्चों के लिए और इससे होता क्या है? देखिए, डिवॉर्मिंग जो है ना, इसको सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं पेट के कीड़े। हमें पता है कि हमारे बच्चों की खुराक भी शायद कुछ ऐसी होती है जहाँ उनका कहीं ना कहीं से ये कीड़े, और ये नॉर्मल होते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई अनोखे हैं या पाकिस्तान के, ये नॉर्मली हम इन्हेंस करें। ये आपको जो सब्जियां हम खाते हैं या फ्रूट्स लेते हैं, उसको अगर हम हाइजीनिकली अच्छी तरह धो के ना इस्तेमाल करें तो वो उन सब्जियों में भी कीड़े होते हैं। तो हमें सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि हमें जब भी कोई चीज़ लें, हम एक तो हाथ धोना, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस सबसे मस्ट है। आपके हाथ कहीं टच हुए हैं, आपको पता नहीं चला। बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, मिट्टी से आप बहुत जल्दी पिक करते हैं, उसमें होते हैं। तो ये सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिस होते हैं, जिनको हम STH कहते हैं। तो ये डिवॉर्म होते हैं। इनके लिए फिर एक टैबलेट दी जाती है जो पेट के कीड़े ख़त्म करते हैं, और ये हर बच्चे को दी जाती है। ये गवर्नमेंट का एक पूरा प्रोग्राम है। ये बच्चों को भी दी जाती है, औरतों को भी दी जाती है जो हमारे हैं सर्कमस्टांस के, हमारी हाइजीन ख़राब है या हमारे बच्चे हाथ नहीं फ्रीक्वेंटली धो रहे। अब तो कोविड के बाद हमारी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हो गई हैं, जिसमें हमने हाथ धोना सीख लिया है कि हाथ धोना, चीज़ों को हाथ साफ रखना है, ये सारी चीज़ें। तो ये डिवॉर्म, और सबसे जो इम्पैक्ट होता है ना ये वर्म इन्फेस्टेशन का, वो होता है एनीमिया। ये आपके अंदर अनीमिया करता है, और इन बच्चों में 2 प्रॉब्लम सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी कि जितनी भी अच्छी खुराक खा रहे हो, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो ये मुमकिन है कि वो खुराक मुयस्सर ना हो। हाँ, एक तो ये कि आपको एनीमिया करता है ये, और दूसरा जो करता है वो आपकी स्किन डिजीजेस, आपने देखा होगा स्किन के ऊपर रैशेस, और ये भी बाज़ दफ़ा वर्म इन्फेस्टेशन से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा आपके पेट खराब होना, बच्चों के अक्सर लूज मोशंस और इस तरह डायरिया, ये कॉमन होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम बच्चों को पहले ही डिवॉर्म कर देते हैं, ताकि अगर कभी ना कभी उसका कोई इंटरेक्शन, और स्कूल में बच्चों के अक्सर हो जाते हैं क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं ये वो, तो क्योंकि अगर एक बच्चे को होता है ना तो वो दूसरे बच्चे को उसके चांसेस होने के, ये फैलता है फीको ओरल रूट से, तो वहाँ उसको होने के, जो छोटे छोटे अंडे होते हैं आपको फील भी नहीं होता, नज़र भी नहीं आते आंखों को, तो इसलिए डिवॉर्म किया जाता है। इसलिए तो ये मतलब तो जो डिवॉर्मिंग है ये बुनियादी तौर पे मेल न्यूट्रिशन का बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है कि क्योंकि जब आप एनीमिया भी हो गया, आपका पेट भी खराब है, आप डाइट जो ले रहे हैं एब्जॉर्ब आपकी सही तरह हो नहीं रही है, आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो रही हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता करते आप अंडर नॉरिश्ड होते चले जाते हैं। इवन डिवॉर्मिंग का एक है कि आपको भूख भी ज़्यादा लगती है बाज़ दफ़ा, और उसमें ये होता है कि आप ओवरवेट एंड ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो डिवॉर्मिंग इसलिए भी बहुत मस्ट है, और इस वन ऑफ द हेल्थ इंटरवेंशन जो हेल्थ सिस्टम का पार्ट है, और गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि बच्चों को रीच किया जाए। और मेरे ख्याल में मुझे भी याद है, हम अपने स्कूल के दौर में हमें गोलियां स्कूल में ही मिलती थी, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट इंटरवेंशन है। डॉक्टर साहब एक बताइएगा, क्या पाकिस्तान में
کبھی آپ نے مطلب بہت عرصے سے آپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کا بھی دیکھا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی ہم تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں جس کی خواہش ہے ہمیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اچھی صحت مند ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اگر جانا چاہیں گے اس طرف تو کیا تبدیلیاں پاکستان میں ہمیں لانی چاہیے؟ دیکھیں, اگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس لو ہینگنگ فروٹس کے ہیں, کیونکہ پاکستان اکنامیکلی از ناٹ دیٹ, ہم جس کو کہیں کہ ہمارے پاس اسکارس ریسورسز ہیں, اگر ہمارے پاس فنڈز اتنے نہیں ہیں یا ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, پاکستان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے, یہ بھی چیزیں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اگر ہم ان لمیٹیڈ ریسورسز میں کیا کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس جو لمیٹیڈ ریسورسز میں ہے کہ ہم اپنی ہیبٹس بہتر کریں, ڈائٹری ڈائیورسٹی کریں. دیکھیں, آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے, آپ نے اپنی چوائسیز بہتر کرنی ہے. میرا میسج تمام نوجوانوں کو یہی ہوگا کہ اٹس اپ ٹو یو, کہ آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے, آپ نے اس میں سے کیا چوز کرنا ہے. یہ آپ کی چوائس ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیا کھانا ہے. آپ کی اپنی ایک پلیٹ ہوتی ہے. اب آپ کو اگر ہم نے نالج دے رہے ہیں, اسکولز میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریکولم میں ایڈ کیا جائے, اور بچوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ کی پلیٹ ہے اس میں سے آپ کا 3 پورشنز ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہے, پروٹینز ہیں, فیٹس ہے, اور پھر آپ کے یہ ساری, تو آپ نے ایک پورشن آپ نے کاربوہائیڈریٹس کے لیے رکھ لیا, پھر ایک پورشن میں آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز رکھ لیں, سلاد رکھ لیں, اور دودھ پئیں. دودھ جو ہے اس میں فل میل ہوتا ہے, ایک فریش جو دودھ ہوتا ہے. پھر اسی طرح انڈا ہے, پروٹین رچ آف پروٹینز ہیں, اس میں سارا کچھ ہے, اس میں ملٹی وائٹامنز اینڈ آئرن بھی ہوتا ہے. پھر فریش ویجیٹیبلس کنزیوم کریں. فریش ویجیٹیبلس ہماری بہت اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو, لیکن ایزلی اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اسکولوں میں کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ بھی اتنا آیا نہیں ہے, لیکن ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں کہ اسکول کے ارد گرد اگر جگہ خالی ہے تو بچوں کو انگیج کریں, ان کو بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سبزیاں ہم اگا سکتے ہیں, تو اس سے ہم وہی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ, تو یہ کر کے ہم کیوں نہیں ایک ہیلدی نیشن بن سکتے ہیں. دیکھیں, ہمارے پاس بہت بیسٹ ایگزامپلز ہیں ایسی ایسی کنٹریز کی جنہوں نے اوور دا 10 years 15 years میں اپنے آپ کو ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ جو انڈیکس ہے وہ بہتر کر کے ہیومن ڈیویڈنڈ بنایا ہے. جیسے چائنا کی ایگزامپل ہم لے لیں, تو ہم بھی فالو کریں ان کنٹریز کو کہ ہمارے پاس جو اگر یوتھ, جو آپ کی 35% یوتھ ہے, اس کو ہم نے کیسے انگیج کرنا ہے. جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں, اور ان کو ہیلدی نیشن وہ کیسے بنے گی, ہم انہی کے دیکھیں اگلے 10 سال کے بعد یہی یوتھ ایڈلٹس ہوں گے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ملک کو لے کے چلنا ہے. تو ان کو ہیلدی ہوں گے تو یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کچھ. اور یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ اویلیبل ہے. اسکولز کا اپنا ایک رول ہے, گورنمنٹ کا اپنا ایک رول ہے, پیرنٹس کا اپنا ایک رول ہے. پیرنٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر آپ بچے کو پہلے دن سے بتائیں گے کہ آپ نے فیزی ڈرنک نہیں لینے, آپ نے الٹرا پروسیس فوڈز جیسے جو یہ برگرز ہیں یہ روزانہ نہیں کھانے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی نہیں کھانے ہیں, لیکن روزانہ نہیں کھانے ہیں, اس کی ریپلیسمنٹ میں گھر کا کھانا. تو آپ دیکھیں کہ ان کی چوائسیز خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائیں گی, ان کی ایک ہیلدی چوائسیز ہوں گی. تو میرے خیال میں ہم سب کو مل کے ایک اچھی نیشن جو ہم نے بنانی ہے, یا ایک ہیلدی نیشن بنانی ہے, ہیلدی اینڈ انٹیلیجنٹ نیشن جس نے آگے چل کے کام کرنا ہے, ان کے لیے یہ ضروری ہے. کیونکہ خوراک اچھی ہوگی تو آپ کا جسم آپ گرو کریں گے, آپ گرو کریں گے تو پھر آپ پرفارم کریں گے, اور پرفارم کریں گے تو آپ اپنے لیے بھی بیسٹ کریں گے اور ملک کے لیے بھی بیسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت انسائٹ فل ڈسکشن جو ہے یہ کی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہماری رپورٹ ہے یونیسیف کی, اس میں پاکستان سے ریلیٹڈ ڈیٹا بھی ہے, اور ہمارے ارباب اختیار جو ہیں پالیسی میکرز ہیں وہ اسے پڑھیں گے. بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر یہ ممکن ہو تو ہم ایک پریزنٹیشن جو ہے اس کی سینیٹ آف پاکستان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے سامنے بھی لے کے جائیں, جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے سامنے بھی اس کو لے کے جائیں. اور آپ نے ایک بڑا اچھا روڈ میپ جو ہے اپنی گفتگو میں بھی دیا, اور اس رپورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کی ہیبٹس چینج کرنی ہے, ان کی فوڈ ریلیٹڈ ہیبٹس چینج کرنی ہے, ان کے لائف سٹائلز کے اندر چینجز لے کے آنی ہے. پھر یہ پالیسیز گورنمنٹ کو کیسی لے کے آنی ہے جو ایک اچھا فوڈ انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں, جس میں بچے پہ ان کی جسمانی اور ان کی جو ذہنی جو بالیدگی ہے اس کے اندر آئے. پھر آپ نے بڑا اچھا ایک تذکرہ کیا کہ جو الٹرا پروسیس فوڈ ہے اس کے ساتھ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یہ ایسا
प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हमने प्रॉफिट से ज्यादा उसको सोशल प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाना है कि सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सोशल प्रॉफिट्स जो हमारी नेशन जिसको बेनिफिट्स चाहिए, जो बच्चों को चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीजें मिलके, और फिर पेरेंट्स का आपने तज़किरा किया कि पेरेंट्स की, टीचर्स की ट्रेनिंग, तो एक बड़ा अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो यूनिसेफ के पास भी अवेलेबल है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मजीद इसके ऊपर इस पे सोच विचार करने की और अच्छी पॉलिसीज को ना सिर्फ बनाना बल्कि शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और सिविल सोसाइटी का एक रोल है कि किस तरीके से करें। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात रहेगी। बस मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से एक बात कहूंगी कि हर एक अपना रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सिर्फ हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है, साइलोज में काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बच्चे जो है ना, ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है, इससे बड़ा कोई और एसेट नहीं हो सकता। हमें स्कूल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करनी चाहिए। हमारी एज अ एडवोकेट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेजिस्लेटर्स बैठे हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो लेट्स वर्क टुगेदर फॉर टू अचीव अ कॉमन गोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।